3 منٹ میں پوری دنیا کا خزانہ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ دولت کا ایسا عمل میری بہنوں میرے بھائیوں تم نے نہ کیا ہوگا۔ چیلنج میرا ہے، گارنٹی میری ہے 100%۔ پڑھنے والا یقین سے پڑھ لے۔ گھر میں جہاں نظر ڈالو گے انشاءاللہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ دیکھیں پیسوں کا اگر مسئلہ ہے، گھر میں فاقے ہیں، گھر میں غریبی ہے، گھر میں قرضہ ہے، گھر میں بیماری ہے، گھر میں بے اولادی ہے، گھر میں رشتوں کا مسئلہ ہے، گھر میں محبت میں ناکامی ہے، گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، شوہر مارتا ہے، ساس مارتی ہے، دنیا کا ہر مسئلہ 3 منٹ میں ختم ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں غوث پاک کا لاڈلا عمل ہے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ دیکھیں مجھے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ ہے، اور میں نے جب بھی عصر کی نماز کے بعد پوری نماز پڑھ کے یہ عمل پڑھا ہے، خدا کی قسم گھر میں اللہ پاک نے میرے ہر مسئلے کو حل کیا ہے۔ دیکھیں ایسے ایسے بیمار بندوں اور بندیوں کو میں نے یہ عمل دیا جن کے گھروں میں فاقے تھے، غریبی تھی، عمل کے پڑھتے ہی اللہ پاک نے ایسے معجزات کیے، اللہ پاک نے ایسی غیبی طریقے سے ان کی مدد کی کہ وہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن گئے۔ دیکھیں عمل کو سنیں گے تو فائدہ ہوگا، جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں بے دلی سے بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ دیکھیں سمجھ لیں، سب سے پہلے سمجھ لیں یا ربنا اور یا مصطفیٰ کا غوث پاک کا عمل ہے، اور یا ربنا وہ خزانہ ہے آپ کے ہاتھ لگنے والا ہے جسے لاکھوں لوگ دوست بھائی بہنیں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ عمل ہے یا ربنا کا کہ جس کو پڑھتے ہی دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے حالات بدل ڈالے۔ اگر آپ منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنی غربت اور تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آ گئے ہیں۔ یہ سچا عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا یا کاپی شدہ وظیفہ نہیں ہے، نہ ہی کسی اور کی ویڈیو سے لیا گیا ہے۔ یہ میرا ذاتی خود پر آزمایا ہوا عمل ہے، اور میں نے ہزاروں لوگوں کو عمل بتایا ہے۔ اس مؤثر کتاب سے لیا گیا ہے جس کا حوالہ بھی دوں گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ کے سب سے بڑے بڑے ولی نے یہ عمل بتایا ہے۔ یہ عمل آج تک اللہ والوں کا راز رہا ہے، لیکن آج میں یہ راز صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ نہ کوئی لالچ، نہ کچھ مانگ رہا ہوں، بس دعا چاہیے، نہ لائک نہ کچھ اور۔ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں یہ وہ مؤثر عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو تو پوری دنیا راضی۔ میرے دوستوں بھائیو بہنوں، آج تمام اذکار کو ایک طرف رکھ دیں اور اس عمل کو پوری توجہ سے سمجھیں۔ یہ صرف 25 سے 30 سیکنڈ کا عمل ہے، 1 منٹ سمجھیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ کب پڑھنا ہے، کون سے دن پڑھنا ہے، کون سی جگہ، سب کچھ۔ دیکھیں آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، چاہے لاکھوں کا چاہے کروڑوں کا قرض ہو، اس عمل سے نجات ممکن ہے۔ یا ربنا اور یا مصطفیٰ کا یہ وہ عمل ہے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، مگر آج جس طرح بتایا جا رہا ہے وہ خاص ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں تو 2 منٹ میں اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ قرض بھی اتر جائے گا اور بیماری بھی۔ میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 300 لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہر وہ شخص جس نے خلوص دل سے پڑھا کامیاب ہوا۔ ایک بہن تھی جن پر لاکھوں کا قرضہ تھا، گھر میں فاقے تھے، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ عمل بتایا۔ وہ عورت صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان، یعنی کہ مجھے بتاتی ہیں اس نے عصر کے بعد یہ عمل پڑھا تھا۔ یقین کریں کرائے کے مکان پر رہتی تھی، ہر کچھ دیر بعد دروازے پر کوئی قرض مانگنے والا آتا، پورے خاندان میں کوئی سہارا نہ تھا۔ خدا کی قسم اس عمل کو پڑھتے ہی ایک اللہ کا نیک بندہ آیا اور 3 لاکھ روپے دے کر چلا گیا۔ اس عورت نے بتایا کہ 3 لاکھ سے قرض بھی ادا کیا اور حالات بہتر کیے۔ اب کہتی ہے میرے پاس اب کروڑوں ہیں۔ خود مجھ سے کہتی ہیں آپ کو کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے، میرے کئی چینل ہے، اور الحمدللہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ میرا ذاتی آزمایا ہوا ہے۔ اگر کوئی میری آواز یا الفاظ چوری کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اسے میں ہٹا نہیں سکتا، لیکن یہ عمل میرا ذاتی ہے۔ اسے پڑھتے ہی گھر میں خوشیاں آتی ہیں، خدا کی قسم۔ اب عمل کو سمجھیں۔
अगर आप पर कर्ज में हैं अगर आप तो ये बेहतरीन अमल है। अगर मेरी बहनें मेरे भाई रिश्तों के लिए परेशान है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो अल्लाह की कसम आज या मुस्तफ़ा या रब्बना का ये अमल पढ़े। अगर रिश्ते की लाइन ना लग जाए तो मुझ पर थू थू करना। अगर आप बे औलाद हैं या नेक औलाद के ख्वाह हैं तो इससे बेहतर वजीफा पूरी कायनात में नहीं। अगर मिल जाए तो मुझ पर थू थू करना। ये अल्लाह वालों का राज है। मैंने इसे अपनी गुर्बत और तंगदस्ती में पढ़ के गुर्बत और गरीबी को दूर किया है। सच बताऊं, आज से 6 साल पहले मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। मैं पहले भी या रब्बना और या मुस्तफ़ा का वजीफा पढ़ता था, मगर एक अल्लाह वाले ने मुझे ख़ास तरीका सिखाया। आधा घंटा मुझे समझाया कि बेटा ये ऐसे पढ़ना है, जल्दी करो, पूरी तवज्जो से पढ़ो। यानी कि पहले अमल समझो, पढ़ते वक्त जल्दी ना करो, तब जाकर अमल असर करता है। मैंने इनकी बात दिल से समझी और सिर्फ एक दिन असर के बाद ही अमल किया। यकीन करें दोस्तों, भाइयों बहनों, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, कर्जों में डूबा हुआ था। मैंने असर के बाद ही अमल पढ़ा। यकीन करें, अगले दिन मुझे 1 लाख रुपए कोई अल्लाह का वली देकर चला गया। 6 साल पहले के 1 लाख आज के 15 लाख के बराबर थे। आज महंगाई ने पैसे की कदर कम कर दी है। इसी 1 लाख से मैंने कारोबार शुरू किया, कर्ज चुकाए और दौलत कमाई। फिर मैंने इस अमल को रोज का मामूल बना लिया। असर की नमाज के बाद पढ़ता हूँ, ये मेरी जिंदगी बन चुका है। अगर आप समझते हैं कि मैं लाइक या व्यूज के लिए करता हूँ तो मैं लाइक और व्यूज पर लानत भेजता हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये अमल आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपको अल्लाह पाक के नाम का एक अमल दे रहा हूँ। अगर आपको फिर भी लगे कि मैं कसूरवार हूँ तो आप सब बहन भाई मुझे माफ़ कर दें। अगर मैं अल्लाह के नाम बता रहा हूँ और वो आजमूदा अमल दे रहा हूँ जिनको पढ़कर लोग कामयाब हो चुके हैं, वो फिर भी आपको लगता है अगर कि मैं कोई धोखा दे रहा हूं, तो भाइयों बहनों, मैंने आप पर ज़बरदस्ती नहीं की है। यह आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है। मैं सिर्फ सच्चे अमल बताता हूं। जिनके दिल में वसवसे हों वो अभी ये वीडियो छोड़ दें। अमल को समझना है तो सबसे पहले जगह तय करें, अपने घर में सुकून से बैठ कर पढ़ें। यही सबसे बेहतर जगह है। अगर वक्त ना मिले तो दुकान में पढ़ लें। कारोबारी जगह पर दूसरा ऑप्शन है। ये वो अमल है जो मैंने ऐसे ऐसे ताजिरों को दिया जिनका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, हालात तबाह कुन थे। यकीन करें, इन्होंने राब्ता किया। मैंने कहा मैं सिर्फ एक चीज़ के बदले अमल दूंगा। वादा करें कि अमल असर करे तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये अमल सच्चा है तो करें असर के बाद। अगर झूठ लगे तो छोड़ दें। मैं किसी लाइक या फॉलो का भूखा नहीं हूं। अल्लाह की कसम, मैं लानत भेजता हूं ऐसे लाइक पर जो सिर्फ दिखावा हो। लेकिन आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए, दुआ जरूर दें। यह अमल आज आपके कर्जे खत्म करेगा, आपकी गुर्बत और परेशानी खत्म करेगा, आपकी दुकान चमकेगी। जरूरी नहीं कि दुकान में पढ़े, बस कहीं भी पढ़ लें, लेकिन सबसे बेहतर घर है। घर में खैर व बरकत आएगी, झगड़े खत्म होंगे, बंदिश दूर होगी, बदनजरी सब खत्म हो जाएगा। ये अमल आपके जिस्म से बीमारियों को दूर करेगा। बड़ी से बड़ी हाजतों जैसे मकान, औलाद, पसंद की शादी, अच्छे रिश्ते, दुनिया की हर हाजत, हर मुराद मिनटों में नहीं सेकंडों में पूरी होगी। अगर ना हो तो मेरा गिरबान हाजिर है। अमल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं, चाहे घर में, दफ्तर में। असर के बाद साल के 365 दिनों में किसी भी दिन असर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। चाहे रोज पढ़ें, सिर्फ एक दिन पढ़ लें तो भी काफ़ी है। सिर्फ एक दिन ये अमल कर लें, रब्बे काबा की कसम सारी जिंदगी दुआएं देंगे। इस अमल के आशिक बन जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, इसके बगैर रह नहीं पाएंगे। ये सच्चा अमल है, ये अर्जन दौलत लाने वाला अमल है। बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी मुरादें पूरी कर देता है। अब अमल कैसे करना है, तरतीब क्या है? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज करें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। पहला वजीफा जो अमल का हिस्सा है ये वो है या रब्बना। देखिए, अगर किसी को दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं आता वो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़े, वरना सबसे बेहतर है कि दुरूद शरीफ पढ़कर अमल करे। दुरूद शरीफ अपनी मर्जी से पढ़े, जितना दिल करे, लेकिन ज़रूर पढ़े। देखें, इससे अमल की ताकत बढ़ जाती है, फ़ायदे ज़्यादा हो जाते हैं। दरमियान में की गई बातें ना छोड़ें, वरना आखिर में समझ नहीं पाएंगे।
या आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों के मुस्तकबिल, आपके कर्जों की अदायगी, आपकी हाजात, दुख तकलीफ, बीमारियों का सवाल है। ये मेरा खुद साख्ता वजीफ़ा नहीं। अगर 10 मिनट में आपकी हर मुश्किल दूर हो जाए, गुर्बत ख़त्म हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। फिर सुकून से बैठ जाएं, दुरूद शरीफ या बिस्मिल्लाह पढ़ें और पहला वजीफ़ा या रब्बना का पढ़े देखें। या रब्बना के अल्फाज आम नहीं है, ये वो पुकार है जो ज़मीन से आसमान तक हलचल मचाती है। ये अल्फाज आसमान के दरवाजे खोल देते हैं, दुआ को सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुंचा देते हैं। या रब्बना कहना सिर्फ एक पुकार नहीं, ये वो सदा है जो कुदरत के खजानों को खोल देती है। ये वो कैफियत है जो हजरत यूनुस ने मछली के पेट में, हजरत इब्राहिम ने आग में, हजरत अयूब ने बीमारी में महसूस की। जब इंसान या रब्बना कहता है तो वो सारी छोटी यानी झूठी ताकतों को छोड़कर असल ताकत को पुकारता है। और अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह वो है जो ज़मीन से पानी निकालता है, सूखे दरख्त को हरा कर देता है, रात को दिन में बदल देता है, फ़कीर को बादशाह बना देता है। हजरत सुलेमान ने जब बादशाही मांगी तो इन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिले। ये दुआ रब से शुरू होती है। अल्लाह को ये अल्फाज इतने पसंद आए हैं कि हजरत सुलेमान को दुनिया और आखिरत की बादशाही अता कर दी। अगर खाने की ज़रूरत होती है तो वो सिर्फ रब कहकर अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह गैब से खाना भेज देता है। हत्ता कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि ये खाना कहाँ से आया है तो इन्होंने फरमाया, ये अल्लाह की तरफ से है, यही या रब्बना की ताकत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। जब इन्होंने गुलाम बना दिया गया यानी इनको, तो जब इन्हें कैद में कर दिया गया, हर जगह इन्होंने सिर्फ एक ही कलमा कहा, या रब्बना। नतीजा अल्लाह ने इन्हें मिस्र के तख्त पर बिठा दिया, ज़मीन का बादशाह बना दिया। दोस्तों, भाइयों बहनों, कहा जाता है एक गरीब मजदूर रोज़ाना दिल से या रब्बना कहकर काम पर जाया करता था। एक दिन इसे रास्ते में एक रेड़ी मिली जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। इसने समझा ये किसी का सामान है, लेकिन जब इसने शहर में ऐलान किया तो पता चला ये किसी का नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इसकी मेहनत का इनाम था। देखें कैसी प्यारी बात है, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो बराह रास्त अर्श तक पहुँचते हैं, जो अल्लाह के दिल को नरम कर देते हैं, जो इसके ख़जाने खोलने पर मजबूर कर देते हैं। ये अल्फाज ना सिर्फ दौलत लाते हैं बल्कि दिल की परेशानी, बेचैनी, गम और दुख सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। ये कोई आम अल्फाज नहीं, ये जादू है, ये मोहब्बत है, ये अल्लाह के दर पर एक दस्तक है जिसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। जो शख्स खास नीयत से इन अल्फाज को दिल की गहराइयों से पुकारता है वो कभी खाली हाथ नहीं वापस लौटता। या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। आज के इस अमल में दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपको या रब्बना की कैफियत बयान नहीं कर सकता। यह अमल मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे दिल के इतना करीब है कि अगर मैं और देर रुक जाता तो शायद ये वीडियो बनाने के काबिल भी ना रहता, शायद मैं कहीं खो जाता या बेहोश हो जाता, क्योंकि मैं या रब्बना और या मुस्तफ़ा की ताकत को जानता हूँ। और आज जो अमल देने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया घूम ले, शायद इससे बड़ा अमल ना मिले। अब मैं आपको मुकम्मल तरतीब समझाऊंगा, हर जुमला, हर लफ्ज़ बच्चों की तरह समझाऊंगा। वजह यह है कि ये कोई मामूली अमल नहीं है, ये ख़जानों को लूटने वाला अमल है। अब ध्यान से सुने, आपको इस अमल की इजाज़त आम है, बस अल्लाह ताला पर यकीन और भरोसा रखना है, बेदिली और बेतरतीबी से नहीं पढ़ना। अमल की शुरुआत कैसे करें देखें। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ एक बार पढ़ें, सुकून से बैठ जाएं और जब तक मुकम्मल अमल ना हो अपनी जगह से ना उठें। यही वो कलमा है जिसने अंबिया की तकदीर बदली, आज की भी यानी आप लोगों की भी आज तकदीर बदलेगा इंशाअल्लाह। दिल से यकीन के साथ पढ़ें, ये फिक्र व फाका ख़त्म करने वाला वजीफ़ा है। जब रिज़्क़ की तंगी हो, माली मसाइल हो, तो या गनियों वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। तीसरा वजीफ़ा जो इस अमल को मुकम्मल करेगा वो है सूरतुल कौसर। 11 बार सिर्फ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़े। देखिए पूरा अमल आपने समझना है, एक जुमला भी अगर आपने यहाँ से वहाँ कर दिया, देखिए ये एक ऐसी दस्तक है या रब्बना या मुस्तफ़ा कि जिसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। जो शख्स खालिस नीयत के साथ इन अल्फाज को दिल की गहराइयों से पुकारता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। आज के इस अमल में दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपको या रब्बना या मुस्तफ़ा की कैफियत बयान नहीं कर सकता। ये अमल मेरे दिल के इतना करीब है दोस्तों, भाइयों बहनों, आज जो अमल मैं आपको देने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया घूम लो शायद ये अमल कहीं और ना मिले। तरीके तरतीब सब कुछ समझाऊंगा, एक एक जुमला एक एक लफ्ज बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है कि यह कोई आम सा अमल नहीं है, बल्कि खजानों को लूटने वाला अमल है। दिल थाम के एक एक लफ्ज को समझना है। ये अमल हर एक को करने की इजाज़त है, बस अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा रखो, बेदिली से बेतरतीबी से हरगिज़ ना करना। अब अमल क्या है? सबसे पहला काम है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इत्मीनान से बैठ जाना और अमल को शुरुआत करनी है। सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाह काफ़ी है। याद रखना, एक बार जब अमल पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो उठना नहीं, एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल कर लेना। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा रखते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर या रब्बना को 11 बार पढ़ना है। शायद आप कहेंगे कि या रब्बना तो हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, इसमें क्या नया है? लेकिन असल राज इन दो और अल्फाज में है जो या रब्बना के साथ शामिल होंगे। ये तीनों अस्कार को एक ही जगह पर बैठकर एक ही वक्त में पढ़ा जाएगा। जैसे किसी आम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिर्फ एक दवा लिखकर देता है, लेकिन माहिर डॉक्टर मुकम्मल मुआयना करता है और फिर एक नुस्खा तजवीज़ करता है। जैसे ही रिज़्क़ के मसले के लिए 3-4 दुआएं एक साथ दरकार होती हैं, ऐसे ही दोस्तों, भाई बहनों, आज मैं जो अमल बता रहा हूँ ये मुकम्मल कोर्स है, ये मुकम्मल अमल है। ये तीनों अस्कार एक ही जगह पर बैठकर पढ़ने से तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। आज आपकी गुर्बत का, परेशानी का आखिरी दिन होगा। खुशियाँ आपके घर में डेरे डाल देंगी। अगर आप ये अमल करने के बाद आपकी ज़िंदगी ना बदले तो अल्लाह की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। यकीन रखें, अमल कीजिए, इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी चंद मिनटों में दूर हो जाएगी। अब अमल का तरीका सुन ले। देखें, असर के बाद ये अमल करना है, इंशाअल्लाह मायूसी ना होगी। आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोग कहीं भी मौजूद हैं, आपके मुल्क में, शहर में जैसे ही नमाज असर हो जाए, असर की नमाज पढ़ने के फौरन बाद आपने मेरा बतलाया हुआ ये छोटा सा अमल पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे, सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे कि वाकई वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। देखें, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर आपने सुकून से बैठ जाना है। आप नमाज के बाद असर की नमाज पढ़ें, वहीं जहाँ नमाज पर बैठ, देखें मर्द हजरात नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं वहाँ पढ़ लें। अगर ऑफिस में, दुकान में, घर में कहीं मजबूरी नमाज पढ़नी पड़ जाती है तो नमाज पूरी कंप्लीट कर ली, आखिरी रकात में सलाम फेरते ही वहीं बैठे बैठे आपने दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज करना है। देखें, क्या आपके हाथ में पैसा आता है और निकल जाता है? क्या आप हर दिन किसी न किसी कर्ज, किसी न किसी तंगदस्ती में घिरे रहते हैं? तो सुने, अगर आपको कोई महबूब है, आपका आपस में नफरत हो गई है, यकीन करें इस अमल को सिर्फ पढ़कर तसव्वुर में उस इंसान पर दम कर दें। अगर सिर्फ मोहब्बत के लिए या जालिम के जुल्म को ख़त्म करना है तो दम कर दे बस। और यही अमल पढ़ने के बाद दौलत चाहिए, हाथ उठाकर मांग ले। कर्जों से छुटकारा चाहिए, हाथ उठाकर कर्जों से छुटकारा मांग ले। बीमारियों का इलाज चाहिए, हाथ उठाकर बीमारियों का इलाज मांग ले। रिश्ते चाहिए, हाथ उठाकर रिश्ते, जितना जो कुछ चाहिए मांग ले, मिल जाएगा। किसी को दिल में किसी के मोहब्बत पैदा करना चाहते, दुआ भी मांगे और उस पर तसव्वुर में दम कर दे। कोई जुल्म करता है, दुआ मांगे, या अल्लाह इसका जुल्म खत्म हो जाए, चाहे जितने भी नाम हो, शोहर सास सबके नाम ले। या अल्लाह मेरी सास जुल्म करती है, या अल्लाह मेरा शोहर जुल्म करता है, या अल्लाह मेरे बच्चे नाफरमान हैं, या अल्लाह फला मसला है, या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसके दिल में मोहब्बत पैदा कर दे, ये मेरा हो जाए या मेरी हो जाए, जो भी है सब कुछ मांगे, जो मांगना है मांगे। असर के बाद ये अमल, देखें असर के बाद वो वक्त होता है जब दुआएं 100% कबूल होती हैं और जब कोई बंदा वो से पाक का बताया हुआ ये अमल पढ़ लेता है। यकीन माने दोस्तों, भाइयों बहनों, मैंने अपनी आंखों से लोगों के मसाइल हल होते हुए देखा है। लोगों की जिंदगियों में मैंने दोस्तों, भाइयों बहनों, तब्दीली आते हुए अपनी आंखों से देखें। ये अमल 100% वर्किंग करता है।
یعنی کہ 1% بھی چانس نہیں کہ یہ عمل ورک نہ کرے، 100% انشاءاللہ ورکنگ کرے گا۔ اس کو ساتھیوں بھائیو بہنوں، اس عمل کو اگر آپ نے چھوڑ دیا، آپ سے بڑا بد نصیب شخص شاید پوری کائنات میں نہ ہو، پوری دنیا میں تم سے بڑا بد نصیب شخص نہ ہو، کیونکہ یہ عمل رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا عمل ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد آپ نے عمل کو پڑھنا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، یہ وظیفہ جو ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدل چکا ہے، کسی نے بینک بیلنس بھرتے دیکھا، کسی نے قرض اترتے دیکھا، کسی نے خالی جیبوں میں نوٹوں کی بارش دیکھی۔ دیکھیں، اس عمل کو عصر کے بعد اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، کون ہے جو اس کے ناموں سے اس کے خزانوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، جو شخص اس ورد کو پڑھتا ہے، اس کو اللہ کا ایک خاص اس نام کو پکارتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دیکھیں، دل کو چھو لینے والی داستانیں۔ ایک شخص لاہور میں رہتا تھا، رکشہ چلاتا تھا۔ عصر کے بعد اسے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا صرف ایک الفاظ پڑھ لے، دیکھنا تیرا نصیب پلٹے گا۔ اس نے پڑھا اور اگلے ہی دن ایک سواری ملی جس نے اسے بزنس پارٹنر بنا دیا۔ آج وہ شخص ایک کمپنی کا مالک ہے۔ ایک بہن کراچی میں ہمیں لکھتی ہیں، بھائی میں نے عصر کے بعد یہ عمل آپ کا بتایا ہوا یہ الفاظ یاد کیے، پڑھے اور صرف دل سے پڑھنا شروع کیا۔ 3 دن بعد میرے شوہر کو ایسی نوکری ملی کہ اب ہم کرائے سے نکل کر اپنے گھر میں ہیں۔ کچھ راز کتابوں میں نہیں ہوتے، وہ سینے سے سینے منتقل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک راز حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بندہ عصر کے بعد فلا اسم الہی کو صدقے دل سے پڑھے گا، اس پر غیب سے رزق نازل ہوتا ہے، اور جب اللہ کے ولی کہتے ہیں تو پھر آسمانوں کی زمین سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ایسے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو صرف اللہ یعنی آپ کی جھولی بھرنے آتے ہیں۔ عصر کے بعد دوستو، بھائی بہنوں، آپ تنہا ہو، نماز کے بعد اپنے دل سے اللہ کے اس خاص نام کو پکاریں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر آسمان دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے خزانوں کے فرشتے صرف اس لمحے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جو شخص اس وقت صرف دل سے پکار لیتا ہے پھر اس کے نصیب بدلتے ہیں، قسمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور غیب سے دولت آتی ہے اتنی کہ گننا مشکل ہو جائے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ خاص نام ہے جو عطا کرتا ہے، جو دے کر خوش ہوتا ہے، جس کے سامنے خزانوں کی چابیاں کچھ بھی نہیں۔ اب آپ پڑھ سکتے ہیں، بس دل سے، سکون سے، خاموشی سے۔ عصر کے بعد دوستو، بھائی بہنوں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں صرف آپ کو چھوٹا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو۔ دیکھیں، یہ ویڈیو محض دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قسمت بدلنے کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے جو تنگ ہیں، تھک چکے ہیں مگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ مگر جس نے آج دل سے پکار لیا، پھر دولت صرف خواب نہیں حقیقت بن جائے گی۔ اپنے دل میں بس اس نام کو بسا لو جو خزانے دیتا ہے، اور دیکھو کیسے بدلتی ہے تمہاری تقدیر۔ اگر یہ ویڈیو دل کو لگی ہو تو صرف ایک نیت سے شیئر کرو۔ اگر کوئی اور تنگ حال بھی آسانی پا جائے اور عصر کے بعد تمہارے لیے، تمہارے گھر کے لیے دولت، رحمت اور سکون کے لیے دوستو، بھائی بہنوں، یہ عمل پڑ جائے تو آپ نے آج تم جو سننے جا رہے ہو یہ سچ ہے، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی گھڑی ہوئی بات، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور اب اگلا نمبر تمہارا ہو سکتا ہے۔ کراچی کے ایک راشن والے نے بتایا کہ میں نے عصر کے بعد دل سے وہ کلمات پڑھے، میرا گودام خالی تھا، قرضے چڑھے ہوئے تھے، اور آج اللہ کی قسم 4 گودام، 3 دکانیں، اور میں ہر عصر کے بعد صدقہ بھی دیتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بے حساب دیا ہے۔ لاہور کی ایک بیوہ خاتون کہتی ہے، میں نے موبائل پر عصر کے بعد والی ویڈیو دیکھی، پیسے نہیں تھے، بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا، وہ وظیفہ یاد کیا اور دل سے پڑھا۔ 3 دن بعد میرے مرحوم شوہر کے بیمہ کی بند فائل کھل گئی، 1,50,000 کا چیک ملا، اور اس کے بعد تو سلسلہ شروع ہی نکلا۔ فیصلہ آباد کا نوجوان، اس نے کہا، فیصلہ آباد کے نوجوان نے، میں نے عصر کو یعنی عصر کے دن، عصر کے وقت میں نے اس عمل کو پڑھا، اللہ کا ایک نام پڑھا۔ شام کو میری والدہ کو ایک کال آئی، ایک رشتہ دار نے دبئی سے ہمیں بزنس میں انویسٹمنٹ آفر کر دی، اب ہم روزانہ کا لاکھوں کا کام کرتے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا، میرے والد ایک پلاٹ کہیں دور تھا ان سے جو ہمیں بھول چکا تھا۔ یعنی عصر کے بعد ایک بزرگ کی کہی ہوئی تسبیح پڑھی، اگلے ہفتے عدالت سے کال آئی، آپ کے نام ایک جائیداد منتقل ہو چکی ہے۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ دیتا ہے، کب کہاں سے کیسے صرف وہی جانتا ہے۔ سندھ کا ایک شخص جو مانگ کر گزارا کرتا تھا کہتا ہے،
असर के बाद मस्जिद के इमाम ने एक नाम बताया। मैंने मुसलसल इसको असर के बाद पढ़ा। अब मैं सिलाई मशीनों की फैक्ट्री चलाता हूँ, 10 लोगों को नौकरी दे रहा हूँ। एक लड़की कहती है हम दिन में एक वक्त की रोटी खाते थे। मैंने वीडियो में बताया कि ऐसे में इलाही को सीखा और पढ़ा। 6 महीने बाद मेरे को बैरून मुल्क जॉब मिली और हमने अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारी। दोस्तों, भाइयों बहनों, ऐसी हज़ारों नहीं लाखों मिसालें मौजूद हैं। बस आपने बताई हुई तरतीब से असर के बाद दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये अमल को पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह खाली झोलियाँ, खाली अलमारियाँ फौरी तौर पर भर जाएंगी। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई कहते हैं ना, वजीफों से कुछ नहीं होता, आज इस्लाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है, ये फौरी तौर पर असर करता है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बस आपने सच्चे दिल से ये अमल करना है, बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। कर्जा है तो पढ़ लें, बीमार है तो पढ़ लें, रिश्तों के तलबगार हैं तो पढ़ लें, दुनिया की हर मुश्किल, हर परेशानी देखें, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें कोई सा भी जो याद हो। और दोस्तों, भाइयों बहनों, पहला वजीफा या रब्बना का जो मैंने आपको बताया, आपने उसी तादाद में पढ़ना है। फिर सेकंड नंबर वाला वजीफा या मुस्तफ़ा सेकंड नंबर पर आपने पढ़ना है। आपने सेकंड नंबर पर या मुस्तफ़ा को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। देखिए, जल्दी जल्दी बताऊंगा, हर चीज़ समझाऊंगा, बस शर्त यह है कि बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, दिल से यकीन से पढ़ना है। अगर आपने अपनी तरफ से कमी पेशी कर दी, देखें, असर की फौरन नमाज के बाद चाहे एक दिन पढ़ें, अगर आपने एक दिन ये अमल पढ़ लिया, यकीन माने सारी जिंदगी इस अमल का पीछा ना छोड़ेंगे, सारी जिंदगी इस अमल के आशिक बन जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे। क्योंकि ये रब को राजी करने वाला अमल है, ये खजानों से झोलियों को भरने वाला अमल है, ये हर हाजत को, हर मुराद को पूरा कर देने वाला अमल है। देखिए दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, दूसरा वजीफा या मुस्तफ़ा का 11 बार पढ़कर तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस अमल में जितने भी वज़ाइफ तमाम के तमाम मुजर्रब और आज़मूदा है, जिसमें से तीसरे नंबर वाला वजीफा। और देखें, याद रखें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। और दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं। अब दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इस अमल का बेहद ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा असर की नमाज के बाद आपने आखिरी नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, फिर दूसरी बार पढ़ें पहला कलमा, फिर तीसरी बार पढ़ें, सुकून से इत्मीनान से पहला कलमा पढ़ते जाएं। कितनी बार पढ़ना है आपने? सिर्फ 41 बार। पहला वजीफा या रब्बना को जो तादाद बताई उसी तादाद में पढ़ना है, जाकर देख लें। फिर आपने सेकंड नंबर पर या मुस्तफ़ा को जो तादाद बताई उसी तादाद में पढ़ना है, देख लें। फिर तीसरा वजीफा 41 बार पढ़ना है। तीनों को असर के बाद एक ही जगह पर बैठकर बताई हुई तादाद में पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ याद हो पढ़ लें, नहीं तो सिर्फ बिस्मिल्लाह से अमल शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आखिर में दुआ ज़रूर कीजिएगा, हाथ उठाकर, झोली फैलाकर, जितनी हाजतें हों, मुरादें हों, परेशानियां हों, दुआ ज़रूर कीजिएगा। और मेरे हक में दुआएं ज़रूर कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल